Hello students, very good morning to all of you. This is your English teacher, Mr. Devesh Singh. Students, today in this video, we are going to read the next part of conjunction, that is subordinating conjunction. Yesterday, we have read the first part of conjunction, coordinating conjunction, and today the second part, subordinating conjunction. Okay, at first you see what is subordinating conjunction. A conjunction that joins two statements. A conjunction that joins two statements, one of which is dependent on the other. Dependent on the other is called subordinating conjunctions. Let's see once again, students. A conjunction that joins two statements. One of which is dependent on other. और उनमें से एक जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है. ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये आपका ठीक है स्टूडेंट्स. कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, बुक में आप देख सकते हैं. देखिए रूल्स नंबर फर्स्ट यहाँ पे है. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम टेल अस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम टेल अस. व्हाट इज टेल अस? it tell us the when an action happened. These include when, whenever, before, after, till, since, as soon as, while, and as. When, whenever, as soon as, while, till, as, means here students, this conjunction tell us when an action happened, and including with all these conjunction, it makes the sentence. The sentence joins to each other with the help of the words, that is conjunction. Now you see some example like that. I left for the school when the rain stopped. The first clause is I left for the school.
and the second is the rain stop. Okay, these two steps. The first statement is I left for the school, and the second statement is the rain stop. Now you have to join these two statements. So to these statements. To these statements, you have to join a conjunction. You require a conjunction, and here the conjunction is when. When I left for the studies, when the rain stopped. तो इस when के माध्यम से इन दोनों स्टेटमेंट को हमने जोड़ने का काम किया. अगर एक यहाँ पे कंजक्शन या when को आप ऐड नहीं करते तो डेफिनेटली दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट. So to make the sentence correct, it requires a conjunction, a subordinating conjunction, that is when. Okay, now you can write here another example. Okay, you see another example. Seema will leave. The vacation starts. Will leave. The vacation starts. If first आपका स्टेटमेंट हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट है the vacation start. Now you have to join these two statements. So you require a conjunction. Now you can add here a conjunction before a conjunction before. Seema will leave. Before the vacation starts. Your conjunction will be here before. Seema will leave before the vacation starts. Seema will leave before the vacation starts. Okay. Now you see the second point, subordinating conjunction of place. ये जो था आपका फर्स्ट पॉइंट था ए टाइम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम. ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम. टाइम से रिलेटेड था आपका व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, व्हाई, सी, एज, बिफोर. ये सब जो थे अब कंजक्शन ऑफ टाइम थे. अब कंजक्शन ऑफ प्लेस. तो कंजक्शन ऑफ प्लेस को जब हम यहाँ शो करेंगे, कंजक्शन ऑफ प्लेस तो कंजक्शन ऑफ प्लेस के लिए यहाँ पे वेयर और वेयर एवर हमारे कंजक्शन होंगे और कंजक्शन विल वेयर एंड वेयर एवर टू शो कंजक्शन ऑफ प्लेस. ओके, कंजक्शन ऑफ प्लेस. देखिए ऐसा सेंटेंस आपको आ जाएगा एंड यू हैव टू फिल द सेंटेंस लाइक दिस. यू कैन प्लेस द प्रोग्राम blank place you like according to the sense of sentence. This is the conjunction of place. Here जो हिंदी में सेंस क्या कर रहा है, यू कैन प्लेस द प्रोग्राम यू लाइक. तुम जहाँ चाहो वहाँ पे प्रोग्राम को प्लेस कर सकते हो. तो जहाँ चाहो
ओके, ऐसे हमारे यहाँ पे सेंस आ रहा है। यू कैन राइट हियर, यू कैन प्लेस द प्रोग्राम wherever you will write here the conjunction wherever you can place the program wherever you like. This will be your conjunction wherever. Okay, wherever you like. Now you can also write here the thief has hidden the treasure. The thief has hidden the treasure where no one can find it. Where no one can find it. यहाँ पे where जो आ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्लेस आ रहा है, जब पे where का कि जो थीफ ने अपने सारी ट्रेजर को, जो भी उनका जो खजाना था उसको उन लोगों ने वहाँ पे चुराया था जहाँ किसी को पता न चले। वेयर नो वन कैन फाइंड इट, तो वेयर यहाँ पे लग गया, और नो वन कैन फाइंड इट यहाँ पे जो अनदर यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे नो वन कैन फाइंड आइट, इस स्टेटमेंट्स को फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर जो कंजक्शन ऑफ प्लेस है यहाँ पे ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया कंजक्शन ऑफ प्लेस। ओके, नाउ यू सी कंजक्शन ऑफ रीजन। कंजक्शन ऑफ रीजन हमें यहाँ पे पढ़ना है। कंजक्शन ऑफ रीजन के लिए जो हमारे कंजक्शन होंगे वो बिफोर, सिंस, एज यहाँ पे हमारे कंजक्शन होंगे। इस चीज़ को यहाँ पे ऐड करने के लिए बिफोर, सिंस, एज। अब बिफोर, सिंस, एज का यूज आपने बहुत किया है सेंटेंस को बनाने के लिए। सेंटेंस आप लगा सकते हैं बहुत जगह पे, जैसे कल हमने आपको बताया था एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो द पेशेंट हैड डाइड ये आपका पास्ट परफेक्ट था, और द डॉक्टर केम सिंपल पास्ट था। इन दोनों सेंटेंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए वी रिक्वायर कंजक्शन, एंड दैट कंजक्शन इज अ कंजक्शन ऑफ टाइम। सो यू विल ऐड हियर बिफोर इज हियर कंजक्शन ऑफ टाइम, बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, और आपको हमने एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स, we have entered in the classroom before the teacher came. We have entered in the classroom before the teacher came. तो यहाँ पे before जो हो गया है आपका कंजक्शन ऑफ, यहाँ पे कंजक्शन ऑफ जो है वो रीजन हो गया, कंजक्शन ऑफ रीजन हो गया, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आप लगा सकते हैं बिकॉज का यूज आप कर सकते हैं। देखिए बिकॉज का यूज आप कर सकते हैं, बिकॉज, कंजक्शन ऑफ रीजन में बिकॉज का यूज आप कर सकते हैं। और बिकॉज का यूज कैसे करते हैं, जैसे आई डिसलाइक हिम, किसी को आप डिसलाइक कर रहे हैं तो सेंटेंस आपका होगा आई डिसलाइक हिम। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया जिसमें जो है कि स्टेटमेंट्स हो रहा है आई डिसलाइक हिम। तो किसी को डिसलाइक करने का रीजन होना चाहिए, विदाउट रीजन यू कांट डिसलाइक एनीवन। So you will write there I dislike him blank place, and in the blank place you will write because, and कोई भी आप वहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं like that। ठीक है, ध्यान से सेंटेंस है आई डिसलाइक, तो मैं डिसलाइक करता हूँ। अगर मैं किसी को डिसलाइक करता हूँ तो उसका रीज़न होना चाहिए, बिना रीज़न का डिसलाइक नहीं होगा। तो दूसरा उस पर जो कमिटमेंट हुआ है कि डज नॉट कीप हिज वर्ड, क्योंकि अपनी बात को पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पे आ रहा है ना
तो यहाँ पे रीजन, और रीजन को शो करने के लिए हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे कंजक्शन ऑफ रीजन डालना पड़ेगा। कंजक्शन ऑफ रीजन हमारा हो जाएगा बिकॉज, BECEUS, कंजक्शन ऑफ रीजन हमारा हो जाएगा बिकॉज विल बी हियर कंजक्शन ऑफ रीजन। ओके स्टूडेंट्स, like that you also take some example like that. I could not visit Amritsar. I could not visit Amritsar. तो अमृतसर का विजिट नहीं कर सकता, वहाँ पे रीजन होना चाहिए। तो ये फर्स्ट हो गया आपका स्टेटमेंट, आई कुड नॉट विजिट अमृतसर, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, आई हैड फॉलन इल, मैं बीमार पड़ गया, आई हैड फॉलन इल। तो शो कर देंगे बीच में लगा करके एज आई हैड फॉलन इल, एज आई हैड फॉलन इल, आई कुड नॉट विजिट अमृतसर एज आई हैड फॉलन इल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सेंटेंस को जो है आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और कंजक्शन का यूज करके यू कैन कन्वर्ट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस कंजक्शन। ओके।